Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, class second year, to the world of mathematics, and your teacher is Hamad Hussain. Today we are going to discuss chapter number 3, Integration. Today we are going to discuss solve exercise 3.5, that is integration involving partial fraction. Student, as you know what is meant by partial fraction. Reverse process of LCM is called partial fraction, as you studied in class first year chapter number 5 and also in class 10th chapter number 5. Integration involving partial fraction. Integration involving partial fraction. If p and q are polynomial function and denominator q of x is not equal to 0 in the rational fraction p of x over q of x can be factorized into the linear and quadratic irreducible factor, then the rational fraction function is written as a sum of simpler rational function, each of which can be integrated by the method already known to us. Student, as you studied that there are 4 cases of partial fraction and all cases depend upon the denominator. Case number 1 is non-repeated linear factors. Non-repeated linear factor. Case number 2, repeated and non-repeated linear factor. Repeated as well as non-repeated linear factor. Case number 3 and case number 4 are linear and non-repeating irreducible quadratic factor or non-repeated irreducible quadratic factors. The case number 3 and case number 4 are merged here. There are 4 cases of the partial fraction. Case number 1, if a denominator has only non-repeated linear factor. That is exercise 5.1 of class first year. And exercise 5.2, repeated linear factors. Repeated means power of variable, not repeated mean whole power. Exercise 5.1, non-repeated linear factor. Linear factor mean power of x and non-repetition mean whole power is 1. Repeated mean whole power 2, while non-repeated linear factors mean variable power also greater than 1. And exercise 5.3 and 5.4 are repeated, non-repeated, irreducible quadratic factors. So case 3 and case 4 are merged here. And here are the example in integration involving quadratic factors. Suppose that we have a question integration x square plus 2 over x 4x raised to power 5 plus 4x cube plus x dx. The denominator factors to x 2x square plus 1 whole square means that x plus 4x cube plus 5x square can be written as x 2x square plus 1 whole square. And if you write this in the form of fraction, then it will be written as a over x plus 2x square plus 1 plus 2x square plus 1 whole square. X is a linear factor, so numerator of x will be 1. 2x square plus 1 is a quadratic factor, so its numerator will be bx plus c. And 2x square plus 1 whole square is also a quadratic factor, so its numerator will be dx plus e. Now taking the LCM and by comparing coefficient method, we can easily find the values of a, b, c, d and e. As you know, a is 2, b is 4, c is 0, d is minus 3 and e is 0 in our case. Put these value in above equation and applying the integration, we have 2 integration of dx over x minus constant 4 out integration of x plus 0. This is why, because value of c is 0, x over 2x square plus 4 minus 3 out
and the value of e is 0. So x over 2x square plus 1 whole square. 2x square plus 1 whole square. 2 as it is function with its derivative in the numerator. So integration of that type will be natural log of x. Natural log of x. And here x over 2x square plus 1. What is the integration derivative of 2x square plus 1? Derivative of 2x square is 4x plus 1. This 4 as there, so which means that natural log of 2x square plus 1, or you can solve this by substitution method. Let u is equal to 4x square plus 1, then taking differential on both sides, du is equal to 4x dx, which means that minus 4x dx will be minus du over 2x square plus 1 is equal to u, and this will be 2x square plus 1 whole square means that u square, and 4 is absent here, so multiply and divided by 4, then we have du over u square. 2 natural log of x minus natural log of u. Why? Because derivative of u is 1 with respect to u, and we can take u square to the numerator. We have u raised to power minus 1, then applying the power rule we have again 3 over 4 u plus c, and we know that natural log of a minus natural log of b can be written as log of a over b, but here 2 natural log of x can be written as natural log of x whole square. Natural log of x whole square minus natural log of u, and what is the value of u? Value of u is 2x square. So natural log of x square over 2x square plus 1 plus 3 over 4, replace the value of u plus c is our final answer. Students, you can see that first of all we apply the partial fraction, simplify the numerator and denominator, simplify the whole fraction, then applying the integration and simplify the following question. These methods used in exercise 3.5. Look at another examples. 2 minus x over x into x plus 1. Linear factor x, another linear factor is x plus 1. X is linear, so its denominator is a. X plus n also linear, so its denominator is b. Taking LCM, put x is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0, and we include the value a is equal to 2 and b is equal to minus c. Put the value here, we have 2 minus x over x into x plus 1 is equal to 2 over x plus minus 3 over x plus 1. Now applying the integration on both sides, integration 2 over x means that 2 natural log of x minus 3 natural log of x plus 1 plus c. Why? Because derivative of x is numerator exists and x plus 1 derivative of x plus 1 is also 1. So function with numerator, it's in the numerator, so natural log of function, and also here natural log of function in this equation. Final answer is 2 natural log of x minus 3 natural log of x plus 1 plus c. You can solve further, or otherwise this could be your answer. Now look another example. Integration 1 over x square plus 5x plus 6. Factorize x square plus 5x plus say 6x plus 2 and x plus 3. Both are linear, so x plus 2 numerator in a and x plus 2 in 3 numerator will be b. Taking x plus 2 is equal to 0, we have a is equal to 1, and x plus 3 is equal to 0, we have b is equal to minus 1. Replace the value, we have 1 over x plus 2 into x plus 3 is equal to 1 over x plus 2 plus minus 1 over x plus 3. Apply the integration. Again, x plus 2 derivative of x plus 2 is 1, so integration is natural log of x plus 2. Plus into minus is minus, and x plus 1 derivative x plus 3 derivative of x plus 3 is 1, so natural log of x plus 3 plus c is your final answer. Another example, 9x plus 32 over x square plus 6x plus 8. Factorize x square plus 6x plus 8, that will be x plus 4 over x plus 2. Both are linear, so x plus 4 numerator is a, x plus 2 numerator is b. Put x plus 2 is equal to 0, we have b is equal to 7 and x
plus 4 is equal to 0, we have a is equal to 2. Replace the value, we have 9x plus 2 over x plus 4 into x plus 2 is equal to 2 over x plus 4 plus 7 over x plus 2. Apply the integration again to outside of an integration, and derivative of x plus 4 is 1 that exists in the numerator. So integration of 1 over x plus 4 is natural log of x plus 4. 7 outside from the integration, we have 1 over x plus 2, and integration of x plus the derivative of x plus 2 is 1. So integration of 1 over x plus 2 is natural log of x plus 2. So final answer is 2 natural log of 4 plus 7 natural log of 2 plus c is your final answer. Look another example. Integration 3 over x into x cube minus 1. X is not equal to 0 or x is not equal to 1. X into x cube minus 1. X cube minus 1 can be written as a cube minus b cube. And the formula of a cube minus b cube is a minus b, a square plus ab plus b square. So we have a over x plus x minus 1 is linear, so its numerator is plus b, and x square plus cx plus 1 is here x square, not only x square plus x plus 1 is the quadratic, so its numerator is cx plus d, After the integration, after applying the partial fraction, we have minus 3 over x plus 1 over x minus 1 plus 2x plus 1 over x square plus x plus 1. By taking the LCM, put x is equal to 0, then x minus 1 is equal to 1, and by comparing coefficient method, we find the constant values of constant a, b, c and d. Put these values in this equation and applying the integration, we have. Now taking minus 3 out of the integration, we have 1 over x, and integration of 1 over x is natural log of x, and another is integration of 1 over x minus 1, and integration of 1 over x minus 1 is natural log of x minus 1, and integration of x square plus x plus 1, x square plus x plus 1, and its derivative is 2x plus 1 that exists in the numerator. So its integration is also natural log of x square plus x plus 1. And you know that natural log of a plus natural log of b can be written as natural log of a into b, and x cube minus 1 into a x square plus x plus 1 again in the form of a cube minus b cube, and in this case we have x cube minus 1. So minus 3 natural log of x plus natural log of x cube minus 1 plus c is your final answer. स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 जो है वो सारी इसी तरीके से ही है. पहले आप लोगों ने उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है. पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आप लोगों ने उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है. तो ये जो एक्सरसाइज 3.5 है ये सारी आप लोगों की असाइनमेंट है. एक्सरसाइज 3.5 जो है ये सारी आप लोगों की असाइनमेंट है. आप लोग हर क्वेश्चन की पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इस स्टेप में पहुंचने के बाद आप हर स्टेप पे अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, और मेजॉरिटी जो है आप लोगों के पास आंसर्स नेचुरल लॉग या tan इनवर्स के फार्मूलाज में आएगा. तो ये जो है एक्सरसाइज ये आप लोगों के पास पूरी की पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में है एज अ असाइनमेंट. एक्सरसाइज 3.5. नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 3.6 that is definite integral. Exercise 3.6 that is definite integral. What is integration? The reverse process of LCM is reverse process of derivative is called integration, and there are two types of integration. One is indefinite integral, another is definite integral, and in previous lecture we have studied the indefinite integral, that is integration of f of x dx will be equal to f capital F of x plus some constant of integration that is c. Now definite integral means that we have lower limit as well as upper limit. In definite integral we have no limit, but in indefinite integral, we have limits in lower limit and upper limit,
f of x dx is equal to capital F upper limit minus capital F lower limit. These are the two examples of the definite integral integration 1 to 4 5x minus 4 dx or integration 1 to e 5 over x dx. These are the two types of definite examples of definite integral. Definite integral. A definite integral has a start and end values, or in simple word, lower limit or upper limit. In other words, there is an interval a b called limits, bound or boundaries are put at the bottom and top of the S like this. Suppose that we have a function which graph in the form of this, and we know that integration means area under the curve. This is the function whose area we have to find. Integration of f of x, indefinite integral, no specific value, we have to find all the area under the function. But if we have value from this point to this point and we have to find the area under the function and under the limit, under the curve, under the limit from a to b, that can be written as integration a to b f of x dx means that definite integral from a to b. स्टूडेंट इंटीग्रेशन जो थी किसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक होती है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल. इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको पता है एरिया अंडर द कर्व भी होते हैं, मगर उसमें सारा एरिया हम लोग निकालते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमने कहाँ तक जाना है या कौन सी डेफिशिएंसीज आती हैं, तो उस वजह से हम उसके साथ लिख देते हैं प्लस सी. जबकि डेफिनेट इंटीग्रल है वो हमें वैल्यूज दे देते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है. जैसे कि इसमें दे रहे हैं कि ये कर्व है, इसके अंडर का एरिया हमने इसमें जैसे ये हमें पहले क्वेश्चंस करते हैं, बट इस पार्ट में देखिए फिगर में ये कह रहा है कि फ्रॉम ए टू बी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये वाला एरिया आप लोगों ने फाइंड करना है. तो ऐसी इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल. इन सिंपल वर्ड, डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे पास कांस्टेंट आंसर नहीं आता, एग्जैक्ट आंसर आता है. तो हमें बताते हैं कि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को इंटीग्रेट करना है. जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो हम लोग रैंडम या अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट्स निकालते हैं, इस वजह से हम उसके साथ लिखते हैं प्लस सी. वी फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल बाय कैलकुलेटिंग द इनडेफिनेट इंटीग्रल एट ए एंड बी देन सब्ट्रैक्टिंग. मतलब ये हुआ कि हम लोग सारा डेफिनेट इंटीग्रल को वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते थे इनडेफिनेट के लिए. वही फार्मूलाज हैं, वही कैलकुलेशन है, मगर जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो इसमें हम लोग पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन में भी पुट हो रही है अपर लिमिट, फिर दरमियान में आएगा माइनस और फिर हम उसमें पुट करेंगे लोअर लिमिट को. जैसे 5x माइनस 4 है, इसकी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आता है पहले हम उसमें पुट करेंगे 4, फिर माइनस, फिर हम उसमें पुट करेंगे 1, तो हमारे पास ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगा. We have the definite integral by calculating the indefinite integral at a and at b and then subtracting. Now, look at the example. What is the integration of 2x dx from 1 to 2? From 1 to 2. स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फंक्शन है 2x जिसका हम लोगों ने ग्राफ बना दिया. ये आप देख सकते हैं, ये येलो लाइन है, ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बन रही है. अब इन्होंने हमें कह दिया कि आप लोगों ने इसका एरिया इंटीग्रेशन करनी है, मतलब हमने इसका एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 2, मतलब कि 1 से लेकर 2 तक के पैच के दरमियान जो है इतने पैच का हम लोगों ने इसका एरिया निकालना है. अगर ये ना गिवन होता तो हम लोग इस सारे का नीचे वाले का एरिया निकालते हैं, मगर अब उसने हमें कह दिए कि फ्रॉम 1 to 2 आप लोगों ने इसका एरिया निकालना है. अगर हम इसकी सिंपल इंटीग्रेशन देखते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो पावर रूल लग जाएगा, एक्स स्क्र बाई 2, 2 और 2 काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल एक्स स्क्र प्लस सी. हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस सी. अब ये रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट में हम लोग पहले पुट करिए, हमारे पास आ गया इनडेफिनेट इंटीग्रल का. अब हम लोग पुट करेंगे, डेफिनेट की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम लोग पुट करेंगे इस एक्स स्क्र प्लस सी में एक्स की जगह पे 2. जब हम लोगों ने एक्स की जगह 2 पुट कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 स्क्र प्लस सी, और जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्र प्लस सी. तो बेसिक डेफिनेशन क्या थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आप ये देख सकते हैं
बेसिक डेफिनेशन में क्या है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें पहले आप लोगों ने क्या पुट करनी है, अपर लिमिट, फिर माइनस करनी है किससे, लोअर लिमिट से। तो ये हमारे पास पहले हम लोगों ने अपर लिमिट का रिजल्ट लिखा माइनस, फिर हम लोगों ने रिजल्ट लिखा लोअर लिमिट का। 2 स्क्वायर प्लस सी ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 1 स्क्वायर माइनस सी और सी कैंसिल आउट हो गए। 2 स्क्वायर इज 4 एंड 1 स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 1 और आंसर हमारे पास इसका कितना आ गया, 3। आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3। तो स्टूडेंट आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आएंगे हम लोगों ने उसमें इनडेफिनेट को यूज़ नहीं करना, सिंपल हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और उसमें लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। पहले हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर रिप्लेस कर देंगे माइनस लोअर लिमिट। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, डेफिनेट इंटीग्रल में कभी सी नहीं आता। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 3। सी और सी दोनों काट जाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल हमें डायरेक्ट रिजल्ट देखता है। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये जो फंक्शन है इसका एरिया जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 3। एंड सी गेट कैंसल आउट, सो डेफिनेट इंटीग्रल वी कैन इग्नोर सी। डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग सी को नहीं लिख सकते। ये इसका रिजल्ट आ गया फ्रॉम 1 to 2x dx is 3। With such a simple shape, let also trying calculating the area by geometry। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास फिगर, ये एक हम इंटीग्रेशन से हम इसको नहीं करते, हम इसका सिंपल एरिया निकालते हैं बाय ज्योमेट्री। तो ये शेप आप देख सकते हैं कि ये शेप ये शेप है हमारे पास, ये डिस्टेंस है फ्रॉम 1 to 2, ये डिस्टेंस है फ्रॉम 1 to 2 मीन्स डैट ये जो लेंथ है इसकी ये कितनी आ रही है, 1। ये जो लेंथ है ये इसकी कितनी आ रही है आप लोगों के पास, 2। ये लेंथ जो है ये आपके पास कितनी आ रही है, 4। ये लेंथ कितनी आ रही है आपके पास, 4। ये आप लोग देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास एक 2 आ रही है, दूसरी हमारे पास कितनी आ रही है, 4। तो 2 कैसे आ रही है, जब x की जगह आप लोग 1 पुट करें, इस फंक्शन में देख रहे हैं 2 कैसे आते हैं, जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना आता है, 2। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया आपके पास, 2। और जब ये 2 पुट करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट कितना होता है, 4। मतलब कि ये पॉइंट कितना है, 2, y इज इक्वल टू 2, और ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू 4। तो ये डिस्टेंस हाइट 2 होगी, ये हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 4, और ये 2x का डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 कितना आ गया, 1। तो ये जो शेप हमारे पास बन रही है ये शेप बन रही है ट्रेपेजियम की। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज a plus b over 2 multiply by h, a plus b over 2 multiply by h। a mean and b are the parallel side and h means the width of the interval or width of the x-axis। Here a parallel sides are 2 and 4, so 2 plus 4 divided by 2 multiply by h, and here h is the x distance, that is 1। 2 plus 4 is 6, 6 by 2 is 3, and 3 multiplied by 3 answer is 3 multiplied by 1 answer is 3। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग ये सिंपल ज्योमेट्रिक एरिया निकालें, ये हाइट 2 है हमारे पास, ये हाइट कितनी आ रही है, 4, और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में पुट करें हमारे पास आंसर कितना आता है, 3। और अगर हम लोग इंटीग्रेशन के साथ करें, डेफिनेट इंटीग्रल के साथ हमने अभी सॉल्व किया तो उसका भी आंसर कितना आ रहा है, 3। तो ये आप लोगों के पास एक बेस्ट एग्जांपल है कि इंटीग्रेशन कैसे होती है एरिया अंडर दी कर्व। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लगाते हैं, इस वजह से हम लोग सी लिखते हैं। यहाँ हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है तो इसमें हम लोग को सी को नहीं लिख सकते। तो इंटीग्रेशन बाय डेफिनेट इंटीग्रल करें, आंसर 3 आ रहे हैं। ज्योमेट्री के साथ हमने इसको एरिया निकाला तो तब भी आंसर क्या आ रहे हैं, 3। तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन इज यूज फॉर द एरिया अंडर द कर्व। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम लोग इंटीग्रेशन में लिमिट्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास बाय माइनस साइन आ जाता है। ये हमें इसका पता लगा है बाय डेफिनेशन से कि अगर हम लोग इसमें ऑर्डर को चेंज करते हैं तो हमारे पास लिमिट बाय माइनस का साइन आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो माइनस आ जाएगा फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। सेकेंड है जी जीरो विड्थ इंटरवल, कि अगर अपर और लोअर लिमिट हमारे पास सेम आ रही हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर होता है 0। ये आप लोगों ने याद रखनी है, एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगी और आगे एमसीक्यूज में भी यूज़ होती हैं कि अगर
अपर और लोअर लिमिट सेम आ रही हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट बाहर आ जाता था तो इसी तरह डेफिनेट इंटीग्रल में भी कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सम एंड डिफरेंस। अगर इंटीग्रेशन में प्लस माइनस आ रहा है, फंक्शन ए है दूसरा फंक्शन बी है, तो दोनों पे अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अगर प्लस है तो दो दरमियान में आ जाएगा प्लस, और अगर माइनस है तो दरमियान में आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस। और स्टूडेंट ये आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी के, इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू सी, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी प्लस फ्रॉम बी टू सी। हम उसको तोड़ देंगे, अब आगे एक्सरसाइज 3.7 में यूज़ होगी ये वाली प्रॉपर्टी कि हम लोग इसको कैसे स्प्लिट करते हैं। 3.6 के भी कुछ क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं कि सपोज करें इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 टू 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम उसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 टू 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 टू 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर ए से सी तक है तो हम दरमियान में कोई और बीच में इंट्रोड्यूस करा के उसको पहले अपर रख लें और दूसरे केस में लोअर रख के फंक्शन सेम होना चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। Application of definite integral. In calculus, integral of a function is an extension of the concept of sum. जैसे आपको पहले बताया गया था कि ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, उसको ऐड करते हैं, सम बनाते हैं, सम ऑफ पार्टीशन ऑफ फंक्शन होता है रिमानियन सम। The process of finding integral is called integration. तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। और definite integral is normally used to find the area, volume, mass, displacement, etc. तो काफ़ी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की, तो चंद एक ये लिखी हुई हैं आप लोगों के पास। नाउ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, एवलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट integrals. Evaluate the following definite integral. Question number 1, part number 1, integration from 1 to 2 x square plus 1 dx, x square plus 1 dx. First part is integration from 1 to 2 x square plus 1 dx. Integration from 1 to 2 x square plus 1 dx can be written as from 1 to 2 x square dx plus integration from 1 to 2 1 dx. Now, what is the integration of x square? Integration of x square is x cube by 3, साथ आ जाएगा जिसके पास from 1 to 2. And what is the integration of 1 dx? That is x from 1 to 2. Now, we apply the integration. Now, we will apply the limit. First of all, replace 2 in x cube by 3, then upper limit minus lower limit. What is the lower limit? Lower limit is 1, so 1 cube over 3 plus, now put upper limit in place of x, then put lower limit in place of x with minus sign. 2 cube over 3 minus 1 cube over 3 is 8 over 3 minus 1 over 3 plus 1, after taking the LCM we have 10 over 3. स्टूडेंट आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to 2, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की तरह ये आपने अभी प्रॉपर्टीज भी देखी हैं, दोनों पे अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, तो यूँ लिखने का इसका तरीका होता है फ्रॉम 1 to 2 और फ्रॉम 1 to 2। अब हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, आप देख सकते हैं इसमें साथ सी नहीं लिखा गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, दोनों पे लादा लादा, पहले इस वाले एक्सप्रेशन पे अपर लिमिट लिखेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जहाँ जहाँ एक्स आ रहे हैं, फिर प्लस, फिर अब इसमें है ही एक्स तो पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर क्या रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट को रिप्लेस करेंगे, सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए, सिंप्लीफिकेशन की आंसर आ गया आप लोगों के पास 10/3। नाउ second part is integration from minus 1 to 1 x raised to power 1 by 3 plus 1 dx. X raised to power 1 by 3 plus 1 dx, integration from minus 1 to 1.
अगेन दोनों पे अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। x रेज़ टू पावर 1/3 पे अलग फ्रॉम -1 to 1 और 1 dx पे अलग फ्रॉम -1 to 1। x के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या हो जाएगा जी, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से ही डिवाइड करेंगे फ्रॉम -1 to 1। और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है आप लोगों के पास, x तो साथ लिख देंगे -1 to 1। तो 1/3 प्लस 1 कितना हो गया आप लोगों के पास, 4/3। डिनोमिनेटर में भी कितना आ जाएगा जी, 4/3। x रेज़ टू पावर 4/3 -1 to 1। अब इसमें x है तो पहले x की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, 1। x की जगह 1 रिप्लेस कर दी, अपर लिमिट माइनस, ये फार्मूले का माइनस है। फिर x की जगह हम लोगों ने क्या रिप्लेस करना है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी आ रही है, -1। अपर लिमिट माइनस, ये फार्मूले का माइनस है और साथ आप लोगों के पास आ जाएगी लोअर लिमिट। 4/3 है तो हम इसको दूसरी न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 3/4। पीछे बच गया x रेज़ टू पावर 4/3। अब हम इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 1 रेज़ टू पावर 4/3 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, -1 रेज़ टू पावर 4/3। -1 और -1 मिलकर हो जाएगा आप लोगों के पास +1, तो कितना आ गया, 2। आपको पता है 1 की जो मर्जी पावर हो, आंसर आपके पास कितना आता है, 1। बट इधर जो है -1 रेज़ टू पावर आ रहा है 4/3, तो हम इसको लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 4 और फिर लिखेंगे रेज़ टू पावर 1/3। जैसे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.23 में हम लोगों ने इवन और ऑड वाले क्वेश्चन में किया था। इसको हम लोग लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 1/3। तो -1 की पावर इवन नंबर आ रही है तो हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर 1/3, जो कितना होता है, 1। तो 1 - 1 आ गया। तो ये 1 - 1 की वजह से ये वाला पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 0 + 2। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 2। तो ये था जी आप लोगों के पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 जो है ये आप लोगों का होमवर्क है एज असाइनमेंट। पार्ट नंबर 4 देखें जी, -6 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x dx। स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x dx, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो फंक्शन है हमारे पास 3 - x। 3 का डेरिवेटिव आ गया 0 और -x का डेरिवेटिव होता है -1। तो इसका मतलब ये है कि -1 हमारे पास मिसिंग है। अगर -1 हो गया तो हो जाता है, या बनाएंगे हम लोग -1, तो फिर हम लोग इस पर पावर रूल लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -1 से डिवाइड भी करेंगे। -6 to 7 था, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये इसको हम लोग लिख दिया 1/2। जब -1 से हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर यहाँ आ जाएगा -1 और एक नीचे आ जाएगा -1, तो साथ ही हम लोगों ने अप्लाई कर दी इस पे इंटीग्रेशन, तो पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड। तो जब -1 से मल्टीप्लाई किया वो तो आपको पता है कि एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, डिनोमिनेटर वाला माइनस ये आ गया। तो 1/2 + 1 आपको पता है होता है 3/2। 1/2 + 1 हो गया 3/2, -3/2 है, जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा -2/3। 3 - x रेज़ टू पावर 3/2 -6 to 2। अब x की जगह हम लोगों ने पुट करनी है अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी आ रही है, 2, तो x की जगह पे 2 रिप्लेस कर दिया, माइनस अब हमने इस x की जगह रिप्लेस करनी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी आ रही है, -6। ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर कितने हो जाएंगे, +6। तो 3 - 2 1, 1 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 3 + 6 इज 9, 9 रेज़ टू पावर 3/2। -2 1 की जो मर्जी पावर हो, आंसर आपके पास आता है 1। 9 रेज़ टू पावर 3/2 हम इसको लिख सकते हैं 9 रेज़ टू पावर 1/2 और होल क्यूब। तो 9 रेज़ टू पावर 1/2 हो जाएगा 3 और 3 का क्यूब कितना आता है, 27। 1 - 27 हो जाएगा -26, माइनस से माइनस हो गया प्लस, और 2 × 26 आ गया 52/3 इज योर फाइनल आंसर। 52/3 is your final answer. Question number 5 is your homework as assignment. And now question number 6. Integration 2 to square root of 5 x into square root of x square minus 1 dx.
स्टूडेंट एक्स स्क्र माइनस वन स्क्र रूट की वैल्यू आपको पता होती है 1/2। तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का होता है 0। x मौजूद है 2 नहीं मौजूद, इसका मतलब है लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पर लगा देंगे पावर रूल। तो पहले 1/2 की फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। फंक्शन है और साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन है और साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। ये स्टेप देख लें जी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स के माइनस 1 कितना होता है 2x। ये फंक्शन है साथ ही डेरिवेटिव है, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से ही डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2, 3/2 ये 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्र माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 और हो जाएगा 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये 2 और 2 कैंसिल आउट होने के बाद 1/3 बच गया। अब हमने x की जगह पुट करनी है अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी आ रही है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, माइनस 1 आ गया। पहले हमने इसकी जगह पुट की अपर लिमिट, फार्मूले का माइनस है, अब हम इसकी जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो x की वैल्यू क्या आ रही है लोअर लिमिट 2 है, तो इसकी जगह 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 5 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 इज 4 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। 5 माइनस 1 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 रेज टू पावर 3/2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस इस 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 अलहदा कर लें और 3 रेज टू पावर 1/2 अलहदा कर लें, तो 2 क्यूब आ गया आप लोगों के पास 8 और इसको हम लिख देंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 3 इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 7, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 dx, x स्क्वायर प्लस 2 dx। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव वाली सिचुएशन देखते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ऊपर 2 मौजूद नहीं है, x मौजूद है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से ही डिवाइड भी करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है। आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2 बाहर आ जाएगा। अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो आंसर क्या होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। आंसर हमारे पास होता है जी नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन कितना आ रहे हैं आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप लोग एक्स की जगह पर लिमिट पुट करें, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 4, फिर एक्स की जगह आप लोग रिप्लेस करेंगे माइनस लोअर लिमिट, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2। तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 2 इज 6 एंड 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 2 इज 3। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर बी, ये 3 और 6 कैंसिलिंग के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, 1/2 natural log of 2. Student, part number 8 is also your homework. Now part number 9, integration from -1 to 1 x plus 1/2 square root of x square plus x plus 1 dx। तो x square प्लस एक्स प्लस 1 इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2x प्लस 1 प्लस 0 मीन्स डैट 2x प्लस 1। हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास 2x प्लस 1 वाली सिचुएशन बन सकती है। तो इसका एलसीएम ले लिया, 2x प्लस 1 आ गया, इसको हम लोग लिख देंगे रेज टू पावर 1/2। तो ये 2 बार आ जाएगा, अरेंज करके लिख देंगे, तो ये फंक्शन है और साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो अब हम लोग इस पर ईजीली पावर रूल लगा सकते हैं, पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड। 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2, ये भी आ गया 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिमिट है -1 to 1। तो 1/3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 फ्रॉम -1 to 1। तो अब x की जगह जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पहले 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1
1 रिप्लेस हो गया, अपर लिमिट पुट होगी, माइनस अब हम रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1। ये माइनस फार्मूले का माइनस है और ये जो रिप्लेसमेंट हो रही है ये इस लोअर लिमिट की जगह रिप्लेस हो रहा है। 1 + 1 + 1 इज 3, -1 का स्क्वायर इज 1 एंड दिस इज -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 की पावर 3/2। तो 3 की पावर 3/2 -1 रेज़ टू पावर 3/2, 3 रेज़ टू पावर 3/2 को हम लिख देंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 की जो मर्जी पावर हो, आपको पता है आंसर कितना आता है 1। सो फाइनल आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1/3 आफ्टर apply divided by 3 on both terms. Now part number 10, 0 to 3 dx over x square plus 9, 0 to 3 x square dx over x square plus 9. X square plus 9 can be written as x square plus 3 square. X square plus 9 can be written as x square plus 3 square, and we know that integration of 1 over x square plus a square is 1 over a tan inverse of x over a. Here x is x and a is 3. Now replace the upper limit, that is 3/3. Now then replace lower limit, that is 0/3. 3/3 is 1, means that tan inverse of 1, that is pi/4, and 0/3 tan inverse of 0, that is 0, which means that pi/12 is your final answer. Part number 13, integration from 1 to 2 natural log of x dx. स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू लाइट रूल इसमें हमारे पास नेचुरल लॉग आ रहे हैं, दूसरा फैक्टर नहीं आ रहा, तो LIATE तो लॉगरिथम फंक्शन आ रहा है। तो अब हम इसमें अपने पास से अलजब्राइक फंक्शन को लाएंगे, फिर हम उस लोग को भी लेट करेंगे जैसे आप लोगों ने प्रीवियस में क्वेश्चंस किए हैं। तो ये अलजेब्राइक 1 ले लिया, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, तो उसके बाद ये इसका रिजल्ट आता है 1 1 कट गया, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम लोग इसमें रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 -1। तो आगे जाने के लिए आप लोगों को पिछले बाय पार्ट्स की इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए, इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, फिर उसमें हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 12 are your homework. Thank you students. If you have any question you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.